Good morning, class 11. So, today we'll start with the new topic, that is law of chemical equilibrium. Okay, before this, we need to revise something, that is how to write the Kc and what is the relationship between Kp and Kc. So, here it is. If the reaction we have 2A plus B, it gives C plus D. That means it is a reversible reaction in which the equilibrium is achieved. Then Kc can be written as C power 3 D into D upon A power 2 into B. Okay, the large bracket is known as the active mass here, and active masses are two types, Kc and Kp. If Kc is there, that means that it will be the concentration, that is it will be written as its number of mole per volume, and if it is in Kp, that means it will be a partial pressure, that means P gases of the gases number of mole will be there. Okay, and the relationship, if you remember, the relationship between the Kp and Kc will be Kp is equals to Kc RT delta N, where the delta N is calculated by the number of moles of product minus the number of moles of the reactant. Okay, so if the question is that H2 plus I2 gives twice of HI, and informations are given, that is 0.2 gram of H2, 2.54 gram of I2 and 2.56 gram of HI are obtained at equilibrium in a 1 liter vessel. Calculate Kc and Kp for the reaction. Okay, atomic masses are also given. For hydrogen it is 1 and for iodine it is 127. So as you know that number of moles can be calculated as the given mass upon molar mass. So first of all, we will write the reaction, that is H2 plus I2 gives twice of HI. Then we will calculate the number of mole, that is given mass, that is 0.2. Then molar mass is 2. Then given mass for I2 is 2.54 and molar mass of I2 is 254. It is not 2.54, children, please remember, it is 254, please remember. Okay, next is twice of HI, that is given mass is 2.56 and molar mass is 128. Okay, so when we will calculate, we will get the 0.1, 0.01 and 0.02 respectively. Now this is the number of mole. If we have to find out the concentration, then we have to divide it by the volume, that is 1 liter. Okay, so the concentration will be, for the H2 will be 0.1 upon 1 liter, for I2 0.01 upon 1 liter, and for HI 0.02 upon 1 liter. Now please apply Kc. Kc is a product upon reactant, molar concentration of the product upon molar concentration of the reactant. That means HI का square upon H2 into I2. अब इनकी respective values रख दीजिए. HI की values कितनी आई थी हमारे पास, if you remember, ये वाली आई थी ना, ठीक, that is a molar concentration. सॉरी, ये वाली concentration, ये ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली रखनी है. ठीक है, तो आप रख लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा. ओके ओके, नेक्स्ट, अगर इसी में कहा जाए आपको Kp भी निकालिए, तो Kp कैसे निकालेंगे, आपको पता है Kp इज टू Kc RT डेल्टा N, और डेल्टा N क्या होता है, टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल माइनस और रिएक्टेंट. तो आप जब ये निकालेंगे तो 0 आएगा, तो RT के पास 0, यानी यहाँ पे Kp क्या Kc के बराबर हो जाएगा. नेक्स्ट इज H2 plus I2 gives twice of HI. Question is 3 moles of H2, 3 moles of I2 are kept in a 10 liter container. If Kc for the reaction at 25 degrees Celsius is 49, find the number of moles of I2 at equilibrium at 25 degrees Celsius. तो जब भी बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, और रिएक्शन लिखने के बाद चाहे वो कुछ पूछे ना पूछे, 2-4 चीज़ें तो हमेशा लिख ही दिया करो. सबसे पहले चीज़ आप रिएक्शन नोट डाउन करिए. फिर इनिशियल कंसंट्रेशन देखो, H2 का कितना है 3 मोल, I2 का 3 मोल, ठीक है, और HI का कितना होगा 0. क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो प्रोडक्ट थोड़ी बनता है, तब तो रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होता है. ठीक, अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पे आने तक क्या होगा, कुछ x मोल बन चुके होंगे HI के, तो यहाँ पे 2 मोल है, यानी ये 2x बन चुका होगा, है ना. अच्छा, अब H2 में से H2 कितना कम हो गया, H2 हो गया x तो बन गया, तो कितना लेफ्ट हो रहा 3 माइनस एक्स, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन 3 था. I2 कितना रहा 3 माइनस एक्स. ठीक है, चलिए अभी कंसेंट्रेशन निकालना है. कंसेंट्रेशन क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल, ये जो एक एट इक्विलिब्रियम पे चीज़ें हमने निकाली है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, प्लीज रिमेंबर. अच्छा,
अभी कंसंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे भैया, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया 10 लीटर, इसको 10 से डिवाइड कर दो सबको, और केसी देखो, केसी की जगह फिर इसकी वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 2.33। बट हमें क्या निकालना है, हमें I2 का निकालना है। ये तो x आया है, तो मोल्स ऑफ I2 क्या है, मोल्स ऑफ I2 है 3 माइनस एक्स, तो 3 में से 2.33 को माइनस करो, क्या आएगा आंसर 0.66। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ें। ओके, सो नेक्स्ट इज next question children is N2 plus slice of H2 gives twice of NH3, then it gives 1 mole of N2 and 3 moles of H2 are made to react in a 4 liter vessel. If 25% of N2 converts to NH3, find Kc. ओके, सेम थिंग, आप रिएक्शन लिखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन देखो, उन्होंने दिया है N2 का 1, H2 का 3 और NH3 का इट विल बी 0। इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का 0 होता है क्योंकि प्रोडक्ट बनता नहीं है तब जब रिएक्शन शुरू होती है। अच्छा, अभी इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल कितने होंगे आप खुद सोचो। अगर हमने x माने हैं तो N2 में से कितना निकल गया 1 माइनस एक्स, और H2 का कितना निकल गया H2x निकला, पर कितने नंबर मोल है 3x, यानी 3 माइनस 3x। ठीक है, NH2 कितना होंगे 2x बन जाएंगे, क्योंकि x मोल अगर NH2 के बने हैं तो यहाँ 2 हैं तो ये 2x। अच्छा, रिमेनिंग कितना, यानी रिमेनिंग कितना हो गया सोचो। अगर उन्होंने कहा है कि 25%, यानी उन्होंने x की वैल्यू क्या दी है आपको 0.2, 25% क्या 0.25, यानी x की वैल्यू रखो यहाँ पे 1.1 माइनस 0.25, और यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रखो। अच्छा, यहाँ से x हटा देना, हाँ ठीक है। अभी कंसंट्रेशन क्या होगा भैया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या 4 लीटर डिवाइड 2, Kc की वैल्यू रखो, आंसर निकालो। आंसर आप जो भी निकालोगे बहुत लंबा चौड़ा आएगा, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि 2 की पार्ट 10 अपॉन 3 की पार्ट 7। आप उसको चाहे सॉल्व कर लो, आप करके देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट है SO2 प्लस NO2 गिव्स SO3 प्लस NO। तो Kc दिया है 16 इनका, और 1 मोल ऑफ ईच गैसेस एंक्लोज इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर दिया है। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, कह रहा है ठीक हो गया। रिएक्शन लिखो, सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन सबका 1 कितना बचेगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। अच्छा, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, NO भी 1 प्लस एक्स, क्योंकि वो तो बना है ना, बचा थोड़ी है, बना है। आप समझ पा रहे हो कि इस वाले क्वेश्चन में और इन वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वो इक्विलिब्रियम पे नहीं थे, उससे हमने इक्विलिब्रियम पे निकाला था। अब जो ये क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 तो Kc निकल जाएगा, Kc वैल्यू निकालो यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे Kc 16 है, ठीक, और बाकी क्या वैल्यू रखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 16 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। तो बेटा यहाँ से ना ये दो वैल्यू आ सकती है जो इसको सॉल्व करोगे, +4 और -4। हमने क्या लिया है यहाँ से, इसको सॉल्व करके हमने लिया है यहाँ से -4 कम वाली। क्यों, क्योंकि 1 की जो ये Kc इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी, याद रखना। ठीक, ऐसे फिर अब x निकालिए, निकालना हमें NO है तो फिर 1 प्लस एक्स करके आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A प्लस बी, ये JEE 2016 मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट A प्लस बी गिव C प्लस D, Kc की वैल्यू है 100 इफ इनिशियली 1 m concentrate of each of 4 species is taken, find equilibrium concentration of D का निकालना है हमें। अभी खुद देखो, यहाँ पे उन्होंने 1 मोलर कंसंट्रेशन दे दिया है यहाँ पे, यानी नहीं आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल कुछ नहीं, डिवाइड कुछ नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी मोलारिटी दे दी है। मोलारिटी में वॉल्यूम से पहले से ही डिवाइड हो जाता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सबका 1 mm। इक्विलिब्रियम पे कितना होगा भाई, इक्विलिब्रियम पे होगा ये 1 माइनस एक्स, और वहाँ होगा वो C 1 प्लस एक्स। Kc लिखो, Kc का रखो उसमें, और ये क्या कहते हैं फिर उसकी उसमें आप वैल्यूज़ रखो, ठीक, और उसमें आंसर निकाल दो। आए समझ में। अब Kc की वैल्यू यहाँ पे होती है 100, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप उसमें निकाल सकते हैं। अगर आप आंसर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0.1818 आएगा, और D निकालना है तो इट विल बी 1 प्लस एक्स। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट
नेक्स्ट है क्वेश्चन N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। पार्शियल प्रेशर दिया है, देखो यहाँ पे N2 H2, अब वो है 0.8 और 0.4 एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल प्रेशर है आपका 2.8। फाइंड Kp निकालना है भाई। अभी Kp कैसे निकलेगा खुद ही सोचो, प्रेशर का टर्म पे है। तो पहले तो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखोगे तो देखो इक्विलिब्रियम पे कितना दिया है इन्होंने, N2 का दिया है 0.8, H2 का दिया है 0.4। तो NH3 का कितना होगा बेटा, NH3 और जो टोटल प्रेशर दिया है 2.8, यानी आप 0.8 और 0.4 को प्लस करो और 2.8 से माइनस कर दो तो NH3 का प्रेशर निकल आ जाएगा, वो भी है कितना 1.6। ये कितना है 1.6। ठीक है, मैंने आपको नीचे देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है कैसे आया। अभी Kp का फॉर्मूला क्या होता है, Kp का फॉर्मूला होता है PNH3 होल स्क्वायर, क्योंकि उसकी पावर 2 है, फिर PN2 देन PH2 की पावर होल थ्राइस। ठीक, आप कुछ नहीं, आप वैल्यू में रखो, यहाँ पे आंसर निकालो, Kp आ जाएगा 50। नेक्स्ट है ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO3। स्टेटमेंट है आपका SO3 एंड O2 गैस आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर हैविंग इनिशियल पार्शियल प्रेशर 1 atm ईच। If Kp is equals to 1.87 per atm, find the partial pressure of SO2 at equilibrium। constant वॉल्यूम हमने सपोज करा है। तो आप आगे रिएक्शन लिखिए। अब एक चीज़ देखो, ये SO2 का पूछ रहा है, ये इसका, अभी तो हम किसका निकालते थे, इस साइड वालों का, अभी इस साइड पूछ रहा है। तो अब हम रिएक्शन कहाँ से शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, यानी अब हम रिएक्शन शुरू करेंगे इस तरीके से बैकवर्ड। आप समझ पा रहे हैं, यानी अब हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या, अब हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन SO3 बैकवर्ड चलेंगे और O2 बनेगा और SO2 का कंसंट्रेशन होगा 0। ठीक है, चलिए ठीक। तो वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन था। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे सपोज इसको मत देखो जो भी लिखा है, तो अगर SO3 के लिए है बाई चांस P, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी, ये होता 1 माइनस पी। तो O2 के लिए होता 1 प्लस P/2, क्योंकि भैया अगर इसके 2 मोल हैं तो उसका 1 है, तो अगर इसका हम 1 माइनस पी लेता है तो उसका हम लेते हैं 1 प्लस P/2। तो इक्वेशन थोड़ी टफ हो जाती है। इसी को ही सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, हमने 2P ले लिया पहले ही, ताकि इक्वेशन आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2P, ये हो जाएगा 1 प्लस 2P, सॉरी 1 प्लस P, और ये हो जाएगा 2P। ठीक है, चलो तो कुछ नहीं करना है, Kp की इक्वेशन बनाओ यहाँ से, और इसमें चलो हमें क्या है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है। अब आपको क्या करने बैठना है, यहाँ पे ऑप्शन सॉल्व नहीं करोगे तो ये बहुत अदरवाइज लंबी हो जाएगी। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे P की जगह 2P, क्योंकि आपको पता है SO2 का निकालना है, SO2 क्या आपका 2P, तो ये सारी जो वैल्यू है 2P की दी है, तो आप 2P की वैल्यू एक एक करके रखते जाओ। देखो 1.7 किसके 1.87 किसके बराबर आ रही है, तो आंसर होगा आपका 0.84, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर एक क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक, DOD भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक रिएक्टेंट 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के हिसाब से कितने नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट हो गए हैं, घुल गए हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट नहीं, प्लीज रिमेंबर। अगर कोई रिएक्शन है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, इनिशियली अगर इसका 1 मोल है तो उसका 0 होगा भाई। तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, इक्विलिब्रियम पे ये बचेगा 1 माइनस 0.4, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 दिया है तो। ठीक, कितना बच गया आप, यानी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी ही होगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 का मतलब जानते हो, अगर अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 आ गई, इसका मतलब है कि 1 माइनस 1 यानी 0, PCl5 0 का मतलब अब ये पूरी रिएक्शन, अब ये पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी इरिवर्सिबल हो गई, अब इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं होगा। ठीक, चलिए बाय चांस 1 मोल की जगह हमने सपोज, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करा। इनिशियली अगर इसके हम 2 मोल लेते हैं तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर सेम 0.4 है तो ये होगा 2 इंटू 0.4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 0.4, यानी 2 मोल के हिसाब से इतना, और बचा कितना 2 माइनस, क्योंकि इसको 2 मोल थे। अगर ये 5 मोल होता तो ये होता 5 इंटू 0.4।
ठीक, इतना, और फिर उसको उससे 5 से माइनस भी कर देते। ठीक, ये देखो मैंने करके दिखाया यहाँ पे। ठीक है, बाई चांस अगर ये सी मोल है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब हमने अल्फा ले लिया, 0.4 की जगह हम नॉर्मल टर्म ले रहे हैं अल्फा, तो ये कितना बचेगा इक्विलिब्रियम पे? ये बचेगा सी माइनस सी अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन अपॉन डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अच्छा एक टर्म और है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं? जब अल्फा को आप कुछ नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। सेम यही फॉर्मेट पे क्वेश्चन है आपका। PCl5 इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2, सारे के सारे गैस फेज में है। अच्छा, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ PCl5 in 1 liter, find the equilibrium constant of each of PCl5, PCl3, Cl2, सबका निकालना है। इफ अल्फा इज 0.4। चलो भाई, वही सारी चीज़ें जो हम पहले करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। ठीक, इनिशियली इसका 1 मोल होगा तो उसका 0 होगा भाई। इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? इक्विलिब्रियम पे ये होगा 1 माइनस अल्फा, ये होगा अल्फा अल्फा, क्योंकि ये तो अल्फा अल्फा बच गए ना, ये उतना ही बचा जितना ये बना, तो ये अल्फा अल्फा बना है, तो ये 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.4 रख दो भाई यहाँ पे। और कंसनट्रेशन के टर्म पे क्या होगा? कंसनट्रेशन के टर्म में होगा भैया जितना वॉल्यूम दिया डिवाइड कर दो, तो ये 1 माइनस 0.4 का मतलब क्या होता है? 0.6, यानी 0.6 अपॉन 1 लीटर। ये होगा 0.4 अपॉन 1 लीटर, ये होगा 0.4 अपॉन 1 लीटर। ठीक, चलो अगर उसी अभी जो हमने क्वेश्चन करा जस्ट उसमें 1 लीटर की जगह, सॉरी 1 मोल की जगह 5 मोल ऑफ PCl5 कर दो और अब निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ नहीं होगा। ये बनेगा 5 अल्फा 5 अल्फा, ये हो जाएगा PCl5 का 5 माइनस 5 अल्फा, तो एक कंसनट्रेशन कितना बचेगा? सपोज 2 लीटर दिया है तो 5 माइनस 5 अल्फा अपॉन 2, यहाँ भी अपॉन 2, यहाँ अपॉन 2। ठीक, अल्फा की जगह रखो 0.4, ये सबकी फिर KC निकालना, फिर उसकी वैल्यू पुट करना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वाइस ऑफ HI गिव्स H2 प्लस I2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया अल्फा, वो कह रहा है KC निकालो, तो कुछ नहीं करना है, ये अल्फा है। अब एक चीज़ देखो, अभी तक जो थे वो 1-1 मोल वाले थे सबके बराबर। अब यहाँ पर अगर उसके 2 मोल हैं, 2 मोल पर अगर ये अल्फा है तो 1 मोल पे तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये भी अल्फा बाई 2, और वॉल्यूम सपोज उसका V दिया है बाई चांस, तो अपॉन V अपॉन V अपॉन V, तो कुछ नहीं, KC की वैल्यू रखो, आंसर निकालो, बस वेरी इजी। अच्छा, अब जो नया क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट है वो ध्यान भी रखना। क्वेश्चन है N2O4 गैसेस फेज में इट कन्वर्ट्स टू ट्वाइस ऑफ NO2 गैस फेज में। अल्फा की वैल्यू दी है 0.25 एट 1 atm प्रेशर, तो हमें Kp की वैल्यू निकालनी है। KC नहीं निकालना है, Kp निकालना है। अब जब कभी भी Kp कहा जाए तो एक चीज़ तो ध्यान रखो, अगर सपोज A और B 2 चीज़ें हैं तो अगर हम दोनों के ही नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो A के नंबर ऑफ मोल को हम डिनोट करेंगे Na से और B के नंबर ऑफ मोल को हम डिनोट करेंगे Nb से। तो जो पार्शियल प्रेशर होगा A का वो होगा Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर B का जो होगा वो होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb इंटू टोटल प्रेशर, जहाँ पे P क्या है आपका टोटल प्रेशर। ठीक, अब निकालो ज़रा। तो अब रिएक्शन है N2O4 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2, तो इनिशियली होगा इसका 1, इसका तो 0। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का देख लो, अगर ये 1 माइनस अल्फा है तो 2 अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि आगे से 2 दिया है। पार्शियल प्रेशर कितना होगा इसका, यानी जिसका हमें निकालना अपॉन टोटल, यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। अब Kp की वैल्यू निकालो, यहाँ रखो, सॉल्व करो बस। ठीक है, तो अल्फा आज का वैल्यू कुछ आ जाएगा आपका। अच्छा हाँ, जब आप नीचे सॉल्व करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू जब रखोगे तो 0.25 को यहाँ मैंने 1/4 रखा है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। एक ध्यान रखना बेटा, जब नीचे जब आप सॉल्व करोगे पहले तो ये जो टर्म आएगा ना, रुको, ये जो आएगा ये आएगा 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा, फिर हमने अल्फा की वैल्यू रखी, नीचे जो है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब ये जो है ना, ये 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1/4, ये इतना छोटा है बेटा, ये है कुछ अप्रॉक्सीमेट 0.0625, 0.0625, यानी 1 के हिसाब से बहुत छोटा है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो नीचे खाली बच जाएगा 1, तो ये सब कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 1/4 बचा, यानी Kp की वैल्यू आ रही है 0.25। ठीक, चलो इसे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्वाइस ऑफ NO गिव्स N2 प्लस O2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO यानी अल्फा की वैल्यू 0.2 दी है, कैलकुलेट Kp एट 3 atm प्रेशर। ठीक है, चलो दिस वॉज योर होमवर्क, टिल दैट थैंक यू।